کہ لیاری ایکسپریس وے متاثرین کی بحالی میں اربوں روپے کی بدعنوانیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 2008 میں بغیر کسی وجہ 5,552 متاثرین کا اضافہ کیا گیا۔ ہر متاثر کو 80 گز کا پلاٹ اور 50,000 روپے فراہم کیے گئے۔ 1,048 افراد کو بغیر شناختی کارڈ کے پلاٹ دیے گئے۔ 427 پلاٹوں کا ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کے بغیر 6 ارب 32 کروڑ 59 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ 16 افسران کو پروجیکٹ ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا۔ غیر تصدیق شدہ معاوضوں کی مد میں 26 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا رپورٹ میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، یہ لیاری ایکسپریس وے ایک منصوبہ تھا کراچی کا۔ جو لیاری ایکسپریس وے بنا تو وہاں جو متاثر افراد تھے ان کے لیے ایک پروجیکٹ بنا گیا تھا۔ ان متاثرین میں سے 80 گز کا پلاٹ اور 50,000 روپے فی متاثرین کو فراہم کرنا تھا۔ اب اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں پیش ہوئی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، یہ میرے سامنے میں دکھا سکتا ہوں۔ یہ کوئی 317 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں بہت بھیانک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ لیاری جو ایکسپریس وے کے متاثرین یعنی لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ جو ہے، اس میں اربوں روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلے سروے میں 14,000 متاثرین تھے، جن کا بعد میں تعداد 24,000 ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 2007 میں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تو متاثرین کی تعداد میں مزید 5,000 سے زائد افراد کا اضافہ کیا گیا۔ تو اس طرح متاثرین کی تعداد جو ہے وہ 30,000 سے بھی بڑھ گئی، یعنی 14,000 متاثرین کے بجائے فائنل سروے میں 30,000 متاثرین ہوئے۔ ظاہر ہے کہ 50,000 روپے فی متاثرہ شخص کو دینے تھے، 80 گز کا پلاٹ بھی دینا تھا۔ یہ پلاٹ جو تھے یہ ہاکس بے میں دینے تھے، تیسر ٹاؤن میں اور بلدیہ ٹاؤن شپ میں ان پلاٹوں کا سلسلہ تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق، فیزیبلٹی کی اسٹڈی نہیں کروائی گئی۔ اسٹڈی فیزیبلٹی کے بغیر 6 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کیا گیا، جس کا کوئی حساب کتاب پیش نہیں کیا گیا۔ 1048 پلاٹ ایسے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے بتایا ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر، جب کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کرنے کے بجائے مختلف اوقات میں مختلف افسران کو ذمہ داریاں دی گئیں۔ اس طرح 16 افسران جو تھے وہ مختلف اوقات میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتے رہے، ان پہ پیسے خرچ ہوتے رہے۔ 10 کروڑ سے زائد رقم جو ہے وہ اس مد میں خرچ کی گئی۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف مدوں میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے، جس میں افسران بھی ملوث ہیں، جس میں لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے جو 16 پروجیکٹ ڈائریکٹرز جو مقرر ہوئے وہ بھی ملوث ہیں۔ 2002 کا یہ منصوبہ تھا، 2002 سے شروع ہو کر 7 سال میں مکمل ہونا تھا، یعنی 2009 میں اس کو مکمل ہونا تھا، لیکن یہ 2019-20 تک یہ منصوبہ جاری رہا اور ابھی تک بھی یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل نہیں ہوا۔ اربوں روپے کی بدعنوانی کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے افراد کو غیر قانونی طور پہ پلاٹ الاٹ کیے گئے، ان کے شناختی کارڈ نمبر ہی ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں۔ جبکہ بتایا گیا ہے کہ 2011 میں KMC کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا اس نے غیر قانونی طور پہ پلاٹوں کی ٹرانسفر کی، یعنی ایک پلاٹ کو دوسری جگہ سے منتقل کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو بھی غیر قانونی تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کر بتایا گیا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس میں، اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ جی عاجز، یہ بتائیے گا کہ متاثرین کی تعداد 24,000 سے 30,000 تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس آڈٹ رپورٹ میں بھی اسی بات کی عکاسی کی گئی ہے کہ بنیادی طور پہ لیاری ایکسپریس وے سے جو متاثر خاندان تھے، جو متاثرین تھے، ان کی تعداد جو ابتدا میں بتائی گئی تھی وہ جو تعداد تھی وہ 14,000 سے کچھ زائد تھی۔
बताया गया 14,811 अफराद जो थे लियारी एक्सप्रेस वे से मुतासिर हुए, लेकिन फिर दूसरी सर्वे जब किया गया तो उसमें उन 14,000 के जगह पे 24,419 अफराद मुतासरीन जाहिर किए गए। लेकिन फिर 2007 में गवर्नर हाउस में एक मीटिंग होती है, बताया जाता है कि अभी भी और मजीद मुतासरीन हैं। तो इस तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2007 में ये मीटिंग होती है, फिर मार्च 2008 में फिर से सर्वे कराया जाता है जिसमें मुतासरीन की तादाद जो है 30,011 हो जाती है। तो इस तरह 5,592 अफराद का जो है इजाफा हुआ। जाहिर है कि इसमें इस तरह इजाफा करते गए 14,000 से 30,000 तक ये इजाफा हुआ, तो इस तरह रकम भी बढ़ती गई, फिजिबिलिटी भी बढ़ती गई। जहां 14,000 अफराद को प्लाट और 50,000 रुपये नकद फी फर्द को मिलना था, वो 14,000 से 30,000 अफराद तक ये पैसे भी गए, 30,000 अफराद तक ये प्लाट भी गए। तो इस तरह ये अरबों रुपए की बदउनवानी हुई है। जी आजिज जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जहांगीर रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज थे। जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान। दोनों ट्रैक जो इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुल गए हैं। जहांगीर रोड पे जारी एहतजाज जो रात 3 बजे से जो है वो इलाका मकीन के मुताबिक रात 3 बजे से वो यहाँ पे सरापा एहतजाज, तो सुबह से के रोज़ जैसे ही जो ट्रैफिक का दबाव यहाँ से गुजरा तो इन्होंने जो है वो दोनों ट्रैक्स को मुस्तकिल तौर पर जो वो बंद कर दिया गया। रुकावटें लगाई गई, यहाँ पे टायर जो वो आजिज़ जदी किए गए, पत्थर जो वो रोड्स पे लगाए गए। एक बड़ी तादाद जो मुजाहिरीन की यहाँ पे मौजूद थी। अभी तक की सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो मैं इस वक्त जहांगीर रोड के ऊपर जो वो रुकावटें हटा दी गई हैं मुजाहिरीन की जानिब से, और दोनों ट्रैक को इस वक्त ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कई घंटों से ये दोनों ट्रैक जो वो बंद थे, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी खासा मुतासर होती। खासकर जहांगीर रोड पे आने वाला जो ट्रैफिक है उसको दूसरी जानिब मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा था। मुजाहिरीन का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सहूलियात थी, बिजली, गैस और पानी की फरहमी जो है वो उनको मअतल थी, जिसके ऊपर वो यहाँ पे सरापा एहतजाज थे। उनका यही कहना है कि फ़िलहाल अभी तो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अगर शाम तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो एक बार फिर जो है वो शाम में वो यहाँ पे सरापा एहतजाज होंगे। इसी तरीके से दोनों रोड को जो वो बंद किया जाएगा, टायर की आती ज़दगी की जाएगी, रोडों पर जो वो पत्थर डाल के जो वो रुकावटें लगाई जाएंगी। यहाँ से गुजरने वालों को जो किसी को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता के इलेक्टेड हुकाम को भी जो वो उन्होंने 12 नोटिस यकीन दहानी कराने की भी कोशिश की कि उनकी जो वो बिजली जो गुज़िश्ता 5 दिन से यहाँ पे आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कई घंटे जो यहाँ पे इलाके में बिजली की फरहमी जो है वो मअतल रहती है। जबकि दूसरी जानिब गैस की बात की जाए तो गैस इस वक्त इस इलाके के अंदर नायाब हो चुकी है। 1 साल से गुज़िश्ता इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पे इलाके में गैस जो वो नापैद है। जबकि दूसरी जानिब पानी के मसले की बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 दिन से भी इस इलाके के अंदर पानी का उसूल जो वो यहाँ पे इम्तिहान बना हुआ है, जिसके ऊपर इलाका मकीनों का सबर जवाब दिया था, जिसके ऊपर वो यहाँ पे अपने हक के लिए एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों रोड्स जहांगीर रोड के जो है वो मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए थे। कई घंटे बंद रहने के बाद मुजाहिरीन ने ये रुकावटें हटा के जो वो दोनों रूट्स को इस वक्त ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। जी फरहान, ये बताइएगा कि एहतजाज में कितने लोग शामिल थे? ये एक बड़ी काफ़ी आबादी है जहांगीर रोड के आसपास जितने भी इलाके हैं, एक बड़ी आबादी है। और मुतासरीन की तादाद की बात की जाए तो इलाका मकीनों के मुताबिक 1500 जायद इस वक्त यहाँ पे मुतासरीन थे जो घरों में जिनके बिजली, गैस और पानी का मसला था। एक बड़ी तादाद हमने देखी कि कुछ जो है वो इस जहांगीर रोड के एक मकाम के ऊपर मौजूद थे, पत्थर डाल के, और दूसरे जो है मुजाहिरीन वो कुछ चंद मसाफत आगे के ऊपर मौजूद थे, और चंद जो वो मेरे बिल्कुल सामने की साइड पर रोड के तीनों हिस्सों के ऊपर ये मुजाहिरीन मौजूद थे। तादाद की बात की जाए तो एक बड़ी तादाद इसके अंदर यहाँ पे शामिल थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन, हर कोई इसके अंदर शामिल था। उन सब का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सहूलियात थी कि बिजली, गैस और पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, नहीं तो शाम के औकात में फिर जो है वो एक बार एहतजाज किया जाएगा, और वो एहतजाज इससे जो है वो कई ज़्यादा गुना बड़ा होगा। जी फरहान खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत में आगाज से राजदौरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज।
बिल्कुल देखें जी, आज एहतसाब अदालत कराची में साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ दायर रेफरेंस की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज इन्हीं रेफरेंस में मुल्ज़मान की बरियत और नेब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत को रेफरेंस की समाअत के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, लेकिन नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने इस रेफरेंस की मज़ीद समाअत और दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है वो 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसी रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी और दीगर जो है शरीक हैं, ये रेफरेंस जो है वो 2019 में दायर किया गया था। इसी रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी और दीगर ने अदालतों से ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। जी, SBCA डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने बगैर NOC के चलने वाले 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। DG SBCA का कहना है कि गैर मंजूर शुदा तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से गार्डन ईस्ट के 2 पेट्रोल पंपों को जो है वो सील किया गया। बताया जा रहा है कि NOC ना होने की बिना पर दोनों पेट्रोल पंप जो है वो सील किए गए हैं। बगैर इजाज़तनामे के पेट्रोल पंप चलाए जा रहे थे, जिस पर डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर दोनों पेट्रोल पंपों को डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट की जानिब से जो है वो सील लगा के बंद कर दिया गया है। साथ साथ लेटर मुताल्लिका थाने सुलझा बाजार को भी अरसाल कर दिया गया ताकि किसी किस्म की सील तोड़ने के हवाले से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो है वो शहर के बेशुमार मकामात पर कार्रवाइयाँ करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 2 पेट्रोल पंपों पर भी गैर कानूनी तामीरात के साथ साथ कार्रवाई की है और उन दोनों पंप्स को बगैर NOC के चलने की बिना पर जो है वो सील कर दिया गया है। जी, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अर्बन हेल्थ सेंटर नॉर्थ कराची की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जहां का अमला शदीद खौफ में काम करने पर मजबूर है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंज से। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के 5C अर्बन हेल्थ सेंटर में, जिसकी इमारत जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है जगह जगह से। लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीजों को तो बेहतर कुछ ना कुछ सहूलियत मिल रही है, लेकिन इमारत की हालत इंतहाई ख़राब है। हमारे कैमरा में दिखा सकते हैं कि ये अस्पताल की इमारत की हालत है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से टूटी हुई, जबकि इसके अलावा दीगर मनाजिर में भी आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह के मनाजिर हैं कि वहाँ पर जगह जगह ऊपर से भी छत गिर रही है, साइड से भी गिर रही है और इंतहाई बुरा हाल है। यहाँ पर ये 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, लेकिन अभी 12 से 13 मरीज दाखिल है, जो कि सिर्फ लेडीज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ वार्ड लिखा गया। ये नॉर्थ कराची का अर्बन हेल्थ सेंटर है, जो कि इस इलाके के हिसाब से बड़ा अस्पताल है न्यू कराची के बाद। जबकि इसके अलावा अंदरूनी अगर आपको मनाज़िर दिखा सकें हम, तो ये देख सकते हैं कि ये अस्पताल की हालत है कि पूरी इमारत डैमेज हो रही है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बिजली के पोल्स के अंदर भी सीवरेज ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी आया हुआ और जगह टूट फूट का शिकार हो, इस तरह नज़र आ रहा है। जबकि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो सामने की जगह पे जहाँ पंखा लगा हुआ है वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है कि यहाँ पे जगह जगह से इमारत टूटी हुई है। जबकि अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ यहाँ पे दाखिल हैं और ये सिर्फ 12 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो है वो वार्ड जो है वो सिर्फ फ़ाल है, जबकि बाकी जो है 38 बेड गैर फ़ाल हैं, जिसमें मर्द भी होते हैं और वो उनका अभी तक दाखिला शुरू नहीं हो सका। और ये इमारत गिरने की वजह से, खौफ की वजह से मज़ीद शुरू नहीं किया जा सका। अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को कई बार ख़त लिखा है कि इस इमारत पर तवज्जो दी जाए, लेकिन इमारत पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इनको खौफ रहता है। लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीज़ों ने कहा कि कुछ ना कुछ सहूलतें मिल रही हैं, लेकिन इमारत के गिरने या डैमेज जगह जगह से की वजह से थोड़ा खौफ होता है। तो महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको ठीक कराने में इक़दाम करें, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सकें। शहर में चिंगची रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड ट्रैफिक में खलल और शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। कुरंगी 5 नंबर पर रिक्शा ड्राइवरों ने गैर कसा शेख से जी अक्सा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके कुरंगी 5 नंबर पे और आप मेरे अपने देख सकते हैं कि ये एक मेन चलता हुआ ट्रैक है, जहाँ पर ये रिक्शा ड्राइवर ने जो है चिंचिन रिक्शा जो है उन्होंने अपना गैर कानूनी अड्डा बनाया हुआ है, और जहाँ पर आमदोरफ्त ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। समाजी कारकुन हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताएगा कि ये हाईकोर्ट से भी ऑर्डर आए हैं इनको यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे चिंचिन रिक्शा खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक के जो मामला हैं बड़े संगीन हैं, और यहाँ पर ये हॉस्पिटल भी कुरंगी नंबर 5 मेन इसे कुरंगी का हॉस्पिटल है इमरजेंसी, और ये सामने रखता स्टैंड आपने देखा है कितना रश है। यहाँ पे आने जाने वालों को इतनी परेशानी का सामना है कि परेशान हाल है, यानी कि आवाम कोई कुछ बता नहीं सकता। वो जो अगर कुछ बोलता भी है तो हिरासमेंट ज़्यादा यहाँ किया जाता है लोगों को। तो ये एक ही शख्स के तकरीबन 400 रक्षे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल
बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अभी फिर भी यहाँ का थोड़ा रश कम है, वरना यहाँ बिल्कुल खड़े होने तक की जगह नहीं होती। और आवाम को इतनी परेशानी है कि सामने हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस के लिए मसले मसाइल हैं। जी बिल्कुल, सामाजिक कारकुन हसन हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हमारे अकब पे करंगी हॉस्पिटल भी मौजूद है जहाँ पर एम्बुलेंस का भी गुजरना होता है, लेकिन इन ड्राइवर्स इन रिक्शों की वजह से एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से गुजरती है, आम तरफ भी बड़ी मुतासिर हो रही है। तो इनका यही मुतालबा है आम से भी और गवर्नमेंट से भी कि इसके ऊपर इन रिक्शों के ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। करंगी की जो आवाम है जहाँ से शहरी गुजरते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी लियाकताबाद आयरन मार्केट के दुकानदारों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार पहले ही नहीं, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी। हुकूमत रिलीफ फराहम करे या कमर्शियल यूनिट को सस्ता करे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिहार से। जी बसीम। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की कमर्शियल मार्केट में, जो कि कबाड़ी गली कहलाती है। और इस मार्केट में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोहे के हवाले से काम किया जाता है। लोहे की मसनूआत को जो है ना सिर्फ बनाया जाता है, बल्कि जो मुख्तलिफ मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है, कटिंग की जाती है, डाइज बनाई जाती है। और इन तमाम तर कामों के लिए ये जो मशीनरी है और दीगर मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये मशीनरी जो है भारी भरकम जो है वो बिजली इस्तेमाल करती है, बिजली का लोड लेती है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से बिजली के बिलों की अगर बात करें तो बिजली महंगी होती जा रही है, दूसरी उसकी वजह से जहां ताजिर तबका परेशान नजर आता है, तो वहीं हुकूमत की जानिब से बिजली जो है वो मजीद फी यूनिट 3 रुपए से ज्यादा महंगी की गई है। इस हवाले से हम जानते हैं जो ताजिर हैं इनसे कि आप ये बताएगा कि जाहिर बात है कि आप जब ये तमाम तर मसनूआत बनाते हैं तो ये मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, और मशीनरी जो है वो भारी भरकम बिजली का लोड भी लेती है। तो अब 3 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है, किस तरीके से आपका काम मुतासर होगा? सर पहले तो हम इतना पहले से जो बिजली इन्होंने महंगी की हुई उसमें हम इतना परेशान है, और ये जो इन्होंने बिजली के और टैक्सेस वगैरह और इतने लगा दिए, केएमसी के चार्जेस लगा दिए और 3 रुपए ये बढ़ा दिए, तो हम तो पहले इतना परेशान है क्योंकि हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो पहले बिजली के बिलों में और गैस के बिलों के, पानी के बिलों के अंदर चला जाता है। तो बताएं आप यहाँ क्या काम हो रहा है? खाली पड़ी हुई मशीनें, और बिजली वैसी दिन में 3 दफा वैसी जा रही है, और महंगी इतनी 100 रुपए से ऊपर टैक्सेस लगा के इन्होंने इतना महंगा कर दिया। दुनिया में कहाँ बिजली इतनी महंगी बनती है? आज भी और भी दुकानदारों से बात करते हैं। आप ये बताएं कि बिजली जो महंगी हुई है 3 रुपए की यूनिट, इस हवाले से आपके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? काम धंधे है नहीं, और ये महंगाई जो गरीब आदमी की मजीद कमर तोड़ रही है कि वो बिजली के बिल भरे या घर खाने को लेके जाए, क्या करे? आज भी ये दुकानदार जिनका कहना है कि एक जानिब अगर हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो घरेलू अखराजात भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा घर का जो बिजली का बिल आता है उसकी नजर हो जाता है। और रही सही कसर अगर दुकानदार इनका ये कहना है कि जो दुकानों का बिल आता है बिजली का तो उसकी नजर हो जाता है। दुकानदारों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत बिजली की कीमतों को कम करके उन्हें रिलीफ फराहम करें। जी। कराची में बिजली और गैस के मसाइल हल न हो सके। गैस की किल्लत ने शहरियों को लकड़ियां और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, और बिजली की लोड शेडिंग ने भी निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। रिपोर्ट कर रहे हैं बसीम इफ्तिहार।